Uh, Assalamu alaikum and good evening, everyone. I hope you are fine. Today, there are a lot of surprises for all of you. Okay? And first of all, I have a high privilege and a very distinct honor of introducing Mr. Awais Irshad, who scored first position in CSS 2017. Awais, thank you so much for joining us and good to see you after a long time. It's my pleasure. It's my pleasure, Awais. It's always good to be back, and it's always good to guide the students. I'm happy to be here. Thank you so much. Asha, unfortunately, we are passing through a very difficult time. जब ये कोविड का आउटब्रेक हुआ था, and we heard of the first case back in, I think, February 2019, और खासतौर पे मार्च के महीनों में तो it was during its peak months. उस वक्त हम लोग सुन रहे थे कि इंशाल्लाह समर्स में ये सबसाइड हो जाएगा, और but unfortunately that didn't happen. जिसकी वजह से मतलब अभी विंटर्स के बाद दोबारा मतलब we again started hearing of, थोड़ा सा ये सबसाइड हुआ था, but we again started hearing of second wave and third wave. I don't know how much this prolongs. So in that case, unfortunately, इस तरह का जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई आउटब्रेक ऑफ सच डिजीज और एनी अदर मिसहैप, इट इज एजुकेशन व्हिच बिकम्स द फर्स्ट कैलेमिटी, स्पेशली जो मतलब फीमेल एजुकेशन हो गई खास तौर पर. तो द गुड न्यूज एंड द सरप्राइज इज दैट KIPS has done something which many others have not. ठीक है, we have launched LMS program. ठीक है, the second part of the talk will be on this LMS program, but first part, ये बात this talk is about CSS, all those who are aspiring for CSS. As you know, CSS exam is becoming more and more a good career option and career opportunity for a lot of people. खास तौर पे वो लोग भी जो फॉरेन डिग्री लेकर आए हुए हैं, like Awais himself in a while वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगा इंशाल्लाह after some time, because this is the only profession which can provide you a combo of all those things which any human being desires in any profession. It gives you social respect, recognition, honor, prestige, position in the society. It gives you a good income and a stable income, most importantly. ये खास तौर पे ये जो कोविड का क्राइसिस आया है, in the wake of this crisis, you first of all realize the importance of the government jobs. You know one thing कि कितना important है वो job secure करना जिसके अंदर एक good और एक stable income हो आपकी, and most importantly, it provides you authority, especially when you take that term in a very positive. तो बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, but unfortunately in the wake of this COVID crisis, आपका learning experience hamper हुआ है, आपका learning experience disrupt हुआ है, और this is not good. जाहिर है. So this talk will all be about कि इस particular मुश्किल time के अंदर what KIPS has done, how you can avail your this time. ये जो मतलब आप, क्योंकि कहते हैं हर crisis में भी एक opportunity होती है, तो आप इस मुश्किल time को avail कैसे कर सकते हैं. Awais also going to be guiding you. And what is this CSS exam all about? What should be the motivation? मतलब why you can consider leaving all your professions aside and joining civil services of Pakistan? What's the motivation? ये Awais से भी हम पूछेंगे what was his motivation. जब ये अपने इंट्रोडक्शन करवाएंगे, you'll get to know कि माशाल्लाह he already had good credentials, he already had a good qualification, foreign qualification. So what was his motivation? क्योंकि that's the most important. You should be knowing, you should be clear in mind what should be your motivation. And obviously ये assume करते हुए कि आप में से कि कुछ लोग हैं जो very first time इस तरह का webinar attend कर रहे हैं, तो उनको basics पता होना जरा बहुत जरूरी है. Number 3, most importantly, what are the hurdles in the way, or what are the discouraging factors? What are those myths? I would say that those are myths. Those are some wrong beliefs जो आपके mind में आपको which cause an impediment in the way of your achieving your dream. सीधी सी बात है. We're going to be discussing those some of the myths as well which discourage candidates from coming to CSS in the first place. And once they come into CSS, they are discouraged and leave. मतलब उनको लगता है शायद हमसे नहीं होना, पता नहीं किस तरह की मखलूक CSS कर दिया है. इस तरह का कुछ नहीं है. ठीक है. Then what it takes to, what are the requirements, what are the habits, what are some qualities common to all CSS qualifiers, ठीक है, वो भी I would request Awais वो आपके साथ share करें, ठीक है. What should be the preparation strategy? Awais ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं because he also was once a student like you people. By being in your shoes, he totally understands कि आप लोगों को इस पर क्या गुजर रही है, start कहाँ से करना है, क्या methodology आपने follow करनी है for CSS. Then obviously where to start from. अच्छा, ऑप्शनल्स के बारे में लोग बड़े कंसर्न होते हैं क्योंकि एंड दैट्स आल्सो अ गुड कंसर्न ऑब्वियसली बिकॉज यू नो वन थिंग, ऑप्शनल्स अगर आपने अपने सही मार्क्स से कंपल्सरी होते हैं, देन यू हैव टू मेक अ कॉम्बो ऑफ ऑप्शनल्स, उसके ऊपर भी बात की जाएगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस फॉर फेलियर, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि एग्जामिनर बच्चों को फेल क्यों करते हैं, बाय एंड लार्ज अमंग अदर्स हम पास कैसे होंगे, सीधी सी बात है. एंड इन द लाइट ऑफ दोज रीजंस फॉर फेलियर, व्हाट
distinguished features we are providing you, और वो जो LMS ऐप जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा था, उसके अंदर ऐसी क्या यूनिक मेथडोलॉजी है which can provide you the best alternate of face to face learning. Although in the wake of this COVID pandemic हमारा face to face learning experience तो disrupt हो गया unfortunately, लेकिन you don't have to worry about anything. Believe me, I must admit कि face to face का तो कोई alternate नहीं है, लेकिन best possible alternate जो इसका बन सकता था in the form of LMS, वो क्या distinguished features हैं, वो क्या ऐसे features हैं जिसके अंदर मैं 100% claim कर सकूं कि you will find it a better, even a better and less costlier and less time consuming thing than face-to-face learning. वैसे क्या चीज़ है? I'm gonna be discussing those features as well. खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है, जिनकी पोस्टिंग कहीं और है, जो लोग डिजर्विंग थे CSS के लिए और करना चाहते थे, कैपेबल भी थे, वो लोग भी क्वालिफाई कर सकते थे, या कुछ लोगों की जॉब टाइमिंग्स बड़ी ऑड है, मतलब 8-9 बजे घर आ रहे हैं और इवनिंग ड्यूटीज हैं, वो लोग करना चाहते हैं, वो लोग कैपेबल हैं, उनकी वो मोटिवेटेड है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते. वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग. कुछ लोग की लोकेशन इस तरह है लेकिन फार अवे फ्रॉम सिटीज, कुछ लोग रूरल एरियाज से हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीमेल्स के लिए, क्योंकि आपको पता है जब एजुकेशन विक्टिम बनता है तो उसमें मेल एजुकेशन के ऊपर फिर पैसे स्पेंड कर लिए जाते हैं, गिवन आवर सोसाइटी, द नेचर ऑफ आवर सोसाइटी एंड गिवन द थिंकिंग ऑफ आवर सोसाइटी. तो फीमेल एजुकेशन स्पेशली हमारी सोसाइटी में 4 से 5 जो कंसर्न्स हैं, लाइक सिक्योरिटी, हेल्थ, ट्रैवलिंग एंड मेनी अदर, लाइक आना जाना, हॉस्टल रेंज करना, लॉजिस्टिक स्टफ, उसके लिए कितना उनको हेल्प करेगी वो ऐप, LMS ऐप. सो एवरीथिंग गोना बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we would like Awaid, welcome again and thank you so much once again for joining us. Thank you, Abbas. Happy to be here. Candidates must know about the incredibly talented person who is there for their guidance. So I would request you to introduce yourself first of all, starting from your educational background and then your motivation for CSS and your preparation strategy. So take 10 to 15 minutes for all this thing. Sure. Abbas, it's always a pleasure to be here और बड़ी खुशी होती है ऑब्वियसली जब भी जो है ना आप हम फील्ड में आ गए, हम सर्विस कर रहे होते हैं, तो हम आवाम का तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट से जब भी इंटरेक्शन होती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनको एक आप इंस्पायर कर सकें, उनको एक मैसेज आप जो है प्रोवाइड कर सकें. सो स्टार्टिंग ऑफ आई स्टडीड इनिशियली एट बीकन हाउस डिफेंस और फिर उसके बाद लाहौर में HSN कॉलेज. HSN कॉलेज से पढ़ने के बाद अपना A लेवल्स हमने जब खत्म किया, फिर उसके बाद मैं हॉलैंड गया, यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी इन नेदरलैंड्स. उधर से मैंने जो है अपना बैचलर शुरू किया था इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, और उधर से जब मेरे जो ग्रेड्स थे और जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी थी. उसके बाद जो है मैं उधर से UC बर्कली, कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, अमेरिका के अंदर, उधर से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, अपनी बैचलर्स की डिग्री इन एज आई सेड BSc इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स. उसके बाद जो है आई वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड. यहाँ से जो है मैंने अपनी MPhil किया डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर, और उसमें भी जो है जो मेरा फोकस था, जो मेरा काम था, जो मेरे पेपर्स थे, जो मेरी एफर्ट्स थी, वो जनरली एक पब्लिक पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना कि किस तरह जो है ना सोसाइटी के अंदर अगर पॉलिसीज बनती हैं वो गरीब मुल्कों में, डेवलपिंग मुल्कों में किस तरह के उसके इम्पैक्ट होते हैं, किस तरह ग्लोबल अलायंसेस बनाई जा सकती हैं, और लोकल ग्लोबली एंड लोकली जो है किस तरह आप जो है अपने प्लान्स बना सकते हैं जो कि जो है ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम गेन कर सकें. तो उसके बाद जो है तो हमेशा से जो मेरा प्लान था वो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करने का प्लान था. मेरी मोटिवेशन थी कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं, और इस सारे के अंदर जो है एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म जो है हमेशा हम ढूंढते रहते हैं. तो इनिशियली मैंने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ थोड़ा सा काम शुरू किया देखने के लिए कि वहाँ एक स्पेस आप क्रिएट कर सकें. फिर उसके बाद जो है मैंने एक बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है अर्नस्ट एंड यंग व्हिच इज कॉल्ड EY, तो उसके लंदन ऑफिस के अंदर एज इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जो है मैंने काम शुरू किया और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स दिए 1 साल तक. फिर उसके बाद
आफ्टर दैट जो है ना मैं वहाँ से अपनी जो है साल कंप्लीट करके आई रियलाइज्ड एंड आई हैड दिस आइडिया इन माइंड एज वेल, और मैं हमेशा ये अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ जो भी मेरी बात सुन रहा है उसको, कि जिंदगी में आपको वो चीज करनी चाहिए जो आप करना चाहते हो, जो जिसके अंदर आपके लिए मोटिवेशन है। अगर आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर से किसी भी चीज के लिए निकलती है तो वो चीज में आप खुद ब खुद बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब जब मैं अपनी आपको पर्सनल एग्जांपल दूं कि इतनी एजुकेशन के बाद, सारा कुछ करने के बाद, जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी और जो है ना फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया, तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था कि जो है ना आप रिप्लेसेबल हैं। आप किसी भी टाइम आप जो है ना चेंज हो सकते हैं। आप, आज मैं काम कर रहा हूँ, कल कोई और काम कर रहा है। मेरी तरह के 50,000 जो है ना लोग लंदन में और पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर काम कर रहे हैं। बट इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप एक ऐसी पोजीशन में आए जहां आप अपनी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकें, जहां आप अपने लोगों को इम्पैक्ट कर सकें, जहां आप जो है जो सीख के आए हैं वो किसी तरह से अप्लाई कर सकें अपनी सोसाइटी के That's अंदर। good. तो That's great. इस Great. मोटिवेशन के साथ, इस जज्बे के साथ कि मैं जो हूँ पब्लिक सर्विस के अंदर काम करूँ, मैं वहां से छोड़ा और मैं पाकिस्तान आया और मैंने आके अपनी जो है सीएसएस का एग्जाम स्टार्ट किया। बिट अबाउट सीएसएस जो है आइडिया के, जब मैंने शुरू किया था तो इनिशियली सबके अंदर एक जोश होता है कि हमने कुछ करना है, हमने एग्जाम देना है, हमने काम करना है। बट ये एक एग्जाम जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, जिसकी एक गाइडेंस होती है, जिसके अंदर एक रूट होता है कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। अगर आप तैयारी ब्लाइंडली करना शुरू करेंगे तो याद रखो कि इंटरनेशनल लॉ के ऊपर एक 4 साल की पीएचडी भी है और एक 100 नंबर का एग्जाम भी है। तो आप जो है, आपको Exactly. कब Exactly. एहसास होगा कि किधर मैंने रुकना है और किधर मैंने जाना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है गाइडेंस मिल जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक अंदाजा हो जाए, आपको किताबें जो है वो आपको स्पेसिफिकली पता हो कि क्या है। ऑब्वियसली आगे इन द अदर अदर पार्ट ऑफ द लेक्चर हम ये बातें और ज्यादा करेंगे, बट नेवरदलेस उधर से फिर मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टेड ऑफ, मैंने सीएसएस की अपनी तैयारी की डिफरेंट जगहों से। फिर मैंने जो है ना जाके अपनी, और तैयारी आप खुद बिल्ड करते हैं अपनी अपनी जो है, आप जिस भी जगह से देखिए आप पढ़ते हैं, जिस भी एकेडमी से पढ़ते हैं, जगहों से पढ़ते हैं, बट नेवरदलेस आपकी जो तैयारी होती है वो आपकी अपनी मोटिवेशन से आती है, Exactly. आपकी अपनी जो Exactly. है ना यूटिलाइजेशन से, कि एक टीचर जो बातें बता रहा है उसको कितना आप अब्सॉर्ब करेंगे और कितना उसको आप लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आई टुक द सीएसएस एग्जाम। मैंने अभी जो है वैसा जैसे जैसे सवाल पूछेंगे तो मैं आपको इस जर्नी के बारे में, जो बीच का मेरी जर्नी थी विच वाज अराउंड अबाउट 9 to 10 months, जो है ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह तैयारी की थी। बट नेवरदलेस इस तैयारी के बाद अल्लाह का शुक्र है कि सीएसएस क्वालिफाई हो गया, सीएसएस टॉप किया पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है। आफ्टर दैट इज वेल सिविल सर्विसेज एकेडमी हमारी ट्रेनिंग हुई, तो आई गॉट द प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल एंड द डायरेक्टर जनरल एकेडमिक शील्ड, जो कि हाईएस्ट ऑनर है Congratulations किसी once भी जो again, है ना mashallah. ट्रेनिंग के That's अंदर। great. और एंड आफ्टर दैट आई वाज पोस्टेड एज जो है टू एंड इट ऑफ के, आफ्टर दैट आई वाज पोस्टेड इन बलूचिस्तान, क्योंकि जो है जो टॉप 5 रूल होता है इस मुल्क के अंदर के जो टॉप के ऑफिसर्स होते हैं 5, वो या गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान आते हैं। तो Right. आई वाज गिवन बलूचिस्तान एज माय फर्स्ट असाइनमेंट, और बलूचिस्तान में भी the place that I'm serving in is Kuchlak, which is Quetta. तो अभी we're sitting in Quetta, तो यहाँ कुचलाक एक सब डिवीजन है। आई एम द फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर टू बी पोस्टेड हियर। बस एक इसको सम अप करने के लिए सारी जर्नी को मैं आपको ये बात बताऊं कि सीएसएस जो है ना दैट इज अ नोबल टास्क। याद रखो हमेशा, सीएसएस कोई आम जॉब नहीं है, सीएसएस कोई आम काम नहीं है। हम लोग यहाँ जो है रात को 8-8 9-9 बजे तक काम कर रहे होते हैं, बट याद रखो कि इस पावर के साथ साथ बहुत लोगों की आपके साथ उम्मीदें होती हैं और बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। बहुत सारे आपको लोग बताएंगे कि करप्शन है, नेपोटिज्म है, बाकी मसले हैं, पोलिटिसाइजेशन है, आप काम नहीं कर सकते। बट Discouraging factors, आई है ना? आई एम Obviously, these all सिटिंग are. इन कोयटा। there's a lot that you can do। तो अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी आपके लिए कुछ करना चाहते हो तो सिविल सर्विस इज द बेस्ट वे
जहां आप पाकिस्तान के अंदर इन वन वे और दी अदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो. सो दैट इज एन आइडिया ऑफ माय स्टोरी, एन आइडिया ऑफ माय मोटिवेशन जो काम के लिए है. और अल्लाह का शुक्र है कि अभी उसी जज्बे से जो है ना आई जस्ट गॉट बैक, और आते ही मैंने ये जूम के ऊपर सेशन किया. तो जो है ना तो द पॉइंट इज हम हमेशा फील्ड में होते हैं और हमेशा काम कर रहे होते हैं गरीबों के लिए और बहुत दुआएं इकट्ठी करते हैं. सो दैट मोटिवेशन ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन एज वेल. So be happy about that. That was remarkable. I'm surprised, mashallah, for such a incredible journey, mashallah. एक चीज जो मुझे फील हुई है कि मे भी कुछ लोग कुछ like you said, Holland, University of Utrecht, University of California, Berkeley, obviously that's one of the top 20 best universities in the world, Ivy League universities, obviously. मे बी ये डिस्करेजिंग फैक्टर साबित हो कुछ लोगों के लिए कि शायद सीएसएस करने की रिक्वायरमेंट ये है कि इतने बड़े टैग्स अटैच होने चाहिए. काइंडली क्लैरिफाई कि हर बैकग्राउंड का इंसान, मतलब regardless of whether जो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है, everyone can do CSS. Kindly comment on this slightly. यार देखो, ये बात आपने अच्छी की, क्योंकि जो है ना आप गौर करो जो है ना स्टार्ट्स की तरफ के जो है ना मेरे साल में आई वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई वाज अ फॉरेन ग्रेजुएट जिसने किया. बट मेरे से पहले मैडम मलिहा जो है वो नस्ट की थी, उन्होंने टॉप किया पाकिस्तान में. उससे पिछले साल उस्मान गुमन साहब थे जो गवर्नमेंट कॉलेज के थे, उन्होंने टॉप किया जो है. उससे पहले जो है आपकी जवेरिया थी, वो भी आपकी जो है ना पाकिस्तान से ग्रेजुएट की थी, जो कि जो है ना टॉप किया. सो अगर आप एक टॉपर जो है या दो टॉपर आपके फॉरेन ग्रेजुएट्स आते हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स हैं जो कि हमारी जो है यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस होते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या आप क्या हैं. याद रखो कि जब आप सीएसएस में आ जाते हो तो आप सब एक बॉल गेम है. और जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था तो मैं ये नहीं सोचता था कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, क्या है. हर बंदे की अपनी एजुकेशन के बारे में उसकी वर्च्यू से उसकी एक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं. जहां एक फॉरेन ग्रेजुएट की ये स्ट्रेंथ होती है कि उसकी अंग्रेजी ठीक होती है, वहां उसको एक नुकसान होता है कि वो पाकिस्तान से बहुत आउट ऑफ टच हुआ होता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, पाकिस्तान की डायनामिक्स से, पाकिस्तान एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, हर चीज के बारे में हमें स्क्रैच से एक दफा सीखना पड़ता है. फिर इन द सर्विस एज वेल हम लोगों को ज्यादा इस वजह से या फॉरेन ग्रेजुएट्स को ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है एक दफा उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो इस वजह से देखो, हमेशा अपनी तैयारी के अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को देखो और कोशिश करो कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे लेवरेज करें, स्ट्रेंथ्स पे खेलें, और जो अपनी वीकनेसेस है उनको हम कम करने की कोशिश करें. तो अगर हम कोशिश करेंगे तो मेरे ही साल में द फर्स्ट जो है मैं था, मैं आप डाइवर्सिटी देखो सीएसएस की, और ये सीएसएस की खूबसूरती है कि मैं बाहर से पढ़ के आया था. और मैं मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, हमारे साल में सेकंड पोजीशन अदील अकबर की थी, आपको पता है, जो कि पहले सर्विस कर चुके हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े थे, और इधर उन्होंने रह के बहुत मेहनत की और बहुत इम्प्रूव की, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की, अपनी जो है एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया, और वो ऊपर आए और सेकंड नंबर पे आए. एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू से कि उनके रिटर्न में मेरे से ज्यादा नंबर थे. तो द पॉइंट इज कि जो है ना आपकी ये जो है उन्होंने मेहनत की, उन्होंने काम किया, और उनको अल्लाह ने जो है ना वो अजर दिया. इज अ वेरी गुड ऑफिसर. जो थर्ड मोहम्मद मुर्तजा आए, वो मोहम्मद मुर्तजा लम से पढ़े हुए हैं, जो कि विच इज अ वेरी गुड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी एज वेल. तो आपको एक वेरिएंस जो है वो आपको सीएसएस में फील होती है, आपके बैचेस में फील होती है. और बहुत सारे हमारे बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, आपके एलएमएस का मैंने आइडिया ये सुना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि इस ऑनलाइन चीज को एक्सेस कर सकते हैं, और जो है ना जिस दूर दराज के इलाकों के अंदर भी कर सकते हैं. तो याद रखो, आपके हर इलाके में सीएसएस और आर्मी दो ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारा कोई भाई बहन, चाचा, मामा, ताया जो है, कजन, दोस्त कहीं ना कहीं से इसके अंदर आता है. सो इट इज अ प्लेटफॉर्म जिससे जो है इस पूरे मुल्क के अंदर एक मेरिट के बेस के ऊपर लोग अंदर एंटर कर सकते हैं और आगे इंशाल्लाह जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं. तो बी वेरी होपफुल एंड बी वेरी हैप्पी कि इसके अंदर जो है सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है काम करने की. बस स्ट्रैटेजी और सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप चले, सो यू कैन अचीव सक्सेस. दैट्स ग्रेट. अच्छा, CSS is an exam, क्योंकि आप में से मे बी कुछ लोग, वी आर, दिस सेमिनार इज अबाउट CSS 2022, ठीक है, जो फरवरी 2022 में जिन्होंने अपेयर होने उनके लिए है. सो इवन फ्यू ऑफ यू जिनको बिल्कुल बेसिक्स का नहीं आइडिया, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. इज एन एग्जाम कंडक्टेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिटन एंड इट्स साइकोलॉजिकल इंटरव्यू. सो दिस सेमिनार इज अबाउट द रिटन इंटरव्यू की कहानी बाद में है.
तो 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, एज यू नो, इंग्लिश 100 मार्क्स ईच, इंग्लिश एसे, इंग्लिश जनरल और इस्लामियात। इन कंपलसरीज में से आउट ऑफ 100 यू नीड एटलीस्ट 40 मार्क्स टू क्वालिफाई द एग्जाम। वो और बात है कि हम लोग सिर्फ आपका मेयरली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं देख रहे, we want you to achieve your desired group. Normally जो आप top 3, although all groups are prestigious, लेकिन normally जो लोग prefer करते हैं, like पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, PAS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और ये जो आपका फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो आपने सिर्फ पासिंग नहीं देखनी है, आपने मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द पासिंग क्राइटेरिया। जो इंग्लिश जनरल, इस्लामियात और इंग्लिश एसे, इनमें से 100 में से आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ द 3 जो कि विच कंप्राइज जीके पोर्शन, जनरल नॉलेज पोर्शन, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी, 600 मार्क्स के टोटल आपकी। अच्छा, ये जो बाकी 3 है, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी, यू रिक्वायर एटलीस्ट 120 मार्क्स इन ऑल 3 कंबाइंड, ठीक है। इवन इफ किसी एक में 40 से कम हो जाए, स्टिल यू पास द एग्जाम इफ योर एग्रीगेट इज 120 अबव। सो ओवरऑल कंपल्सरी 600 मार्क्स की कंपल्सरीज है, और 600 देयर आर 7 ग्रुप्स जिनमें 6-7 सब्जेक्ट्स हैं इन एवरी ग्रुप। उनमें से आपने कॉम्बो बनाना होता है ऑप्शनल्स का, एंड यू हैव टू मेक अ कॉम्बो ऑफ 600 मार्क्स। ग्रुप 1 से आप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से आप 200 मार्क्स ले सकते हो, एंड इन रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स लाइक ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, उनमें से आप यू कैन सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ईच, और कुल मिला के आपने 600 मार्क्स का कॉम्बो बनाना होता है, ठीक है। सो इन अ व्हाइल Abed gonna be guiding you how to select your optional, what were his optionals, क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं, कैंडिडेट्स का ये कंसर्न होता है। लेकिन I tell you the best thing is that when you're gonna be allowed and study, आप लोगों को LMS से आपकी एक्सेस दी जाएगी, and you will be allowed to take the lectures, 1 or 2 लेक्चर्स आप लेकर खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपकी दिल को छूता है। मतलब काफी सारी चीजें देखी जाती हैं बिफोर सेलेक्टिंग एनी सब्जेक्ट, मतलब उस सब्जेक्ट की नेचर भी देखी जाती है कि वो स्कोरिंग नेचर का है, लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग, या उसका सिलेबस भी देखा जाता है, और आपका इंटरेस्ट भी देखा जाता है, आपका बैकग्राउंड भी देखा जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच डिसाइड व्हिच सब्जेक्ट यू गो फॉर। Abed, I would request you to comment on अपने ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा बता दें, और जनरली इन 4 to 5 मिनट्स जनरली जो लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जस्ट अ जनरल ओवरव्यू, और उसके बाद जिसको डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए, entire KIPS is at their disposal. All the academic counselors, 5 to 6 people, जिन लोगों ने मतलब having multiple subjects, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने CSS क्वालिफाई भी किया था, so they are at your help, वो आपको हेल्प करेंगे in order to select your subjects. So you can come anytime, you can visit anytime, you can call any of our academic counselors. We are here at your disposal to help you. Meanwhile, Abed थोड़ी सी ऑप्शंस के ऊपर कमेंट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑप्शनल्स के लिए एक CSS की जो भी आप तैयारी करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि एक बड़े सिस्टमैटिक और जो है स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसको लेके चले। अब ऑप्शनल्स के लिए अगर मैं आपको एक हायरार्की जो है 1, 2, 3 करके आपको बताऊं कि क्या चीजें जो है जरूरी हैं, जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, आपने एक वो जो है लिस्ट देखी सारे के सारे ऑप्शनल्स की, देखो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके जो सब्जेक्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं अपने जिंदगी के अंदर, जो आपका पुराना प्रायर एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो आपको हेल्प करता है। उसके अंदर एक ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बेसिस, आपकी फाउंडेशंस उसके अंदर बनी होती हैं, सो दैट कैन हेल्प यू विद प्रिपरेशन, क्योंकि CSS के अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर अगर आप जो है कोई ऐसा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपके पास पहले ही एक जो है ना अवेलेबल है नॉलेज, तो वो आपको एक काफी हेल्प करती है। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर प्रायर एकेडमिक एक्सपीरियंस। द सेकंड क्राइटेरिया इज बेसिकली कि आपको जो है आपका इंटरेस्ट क्या है, उसकी वजह क्या है। वजह ये जरूरी समझने वाली है कि अगर किसी ने इकोनॉमिक्स के अंदर या जो है साइंसेस के अंदर अगर जो है अपनी डिग्री की हुई है, तो वो एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि CSS के ग्रुप्स इस तरह से बन चुके हैं कि आपको हर डिसिप्लिन से एक ही आपको जो है ना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सो अगर आपने पहला सब्जेक्ट अपना प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर एजुकेशन के हिसाब से देख लिया, द सेकंड क्राइटेरिया और फिल्टर आई वुड से इज कि जो है ना आपका इंटरेस्ट क्या है। अब मुझे जैसे जो है, जो मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था उसमें मैंने अकाउंटिंग रखा,
तो 200 नंबर का वो जो है खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर जो है ना मैंने आपके 2 सब्जेक्ट्स जो है ना वो रखे, और वो है आपका यूएस हिस्ट्री का, क्योंकि मुझे जो है हिस्ट्री के अंदर से बेसिकली जो है यूएस हिस्ट्री है दैट वाज सब्जेक्ट जो कि जो है ना मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया, ज्यादा जो है मुझे लगा, क्योंकि जब आपने पढ़ना ही है, सब्जेक्ट करने ही है, तो वो सब्जेक्ट लो जो आपको पसंद है, वो सब्जेक्ट लो जो आप पढ़ना चाहते हो। तो दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया। द थर्ड क्राइटेरिया इन दिस इज दैट कि जो है आपका जो सब्जेक्ट आपका रिलेटिवली शॉर्ट हो। जो सब्जेक्ट आपका रिलेटिवली शॉर्ट है, जैसे जेंडर स्टडीज हो गया, उसके अंदर जैसे पंजाबी कई दफा जो है ना लोग लेते हैं, बट जेंडर स्टडीज पर से क्योंकि मैंने लिया हुआ है उसको, तो वो जो शॉर्ट सब्जेक्ट होता है वो आपको फायदा ये देता है कि आप उसको जो टाइम आप उसके अंदर जो है ना बचाते हैं, वो आप किसी और अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। सो दैट कैन बी क्वाइट हेल्पफुल एज वेल। तो आपका और जो फोर्थ क्राइटेरिया है इस सारी की सारी चीज के अंदर, इस हायरार्की के अंदर, वो आपका स्कोरिंग ट्रेंड है। देखो स्कोरिंग ट्रेंड्स के ऊपर ये बात आप याद रखो कि जो है स्कोरिंग ट्रेंड्स जो है वो एफपीएससी जान के बदलता रहता है। एफपीएससी उसको रैंडम रखता है ताकि जो है कोई एक सब्जेक्ट ऐसा ना बन जाए जिसके अंदर हर दफा नंबर आते हैं। हमारे साल में जेंडर स्टडीज में बहुत ज्यादा नंबर आए थे, उससे पिछले साल एनवायरमेंटल साइंस में बहुत ज्यादा नंबर आए थे, और हमारे अगले साल जो है फिर दोबारा उसके जो है ना नंबर गिर गए। सो इफ यू ट्राइंग टू एंड थिंक लॉजिकली, देखो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं भी अगर आपको कोई बात कह रहा हूँ तो ट्राई टू थिंक लॉजिकली। कोई भी आपको सीएसएस में कोई बात बता रहा है तो आप सोचो कि जो है ना इसके पीछे रैशनल क्या है, क्यों ये बात हो रही है, और 10 बातों के अंदर से वो 2 बातें ही आपकी रह जाएंगी जो आपको अपील करेंगी आपके लॉजिक को, ठीक है। और जो अपील करती है आपकी लॉजिक को, चाहे वो कहीं से भी मिली हो आपको, किसी टीचर से, किसी स्टूडेंट से, किसी प्रायर जो है आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट से, उसको कोशिश करो अपने कामों के अंदर लेके आओ। सो एज आई सेड, सबसे पहला आपका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया आपका प्रायर एजुकेशन है। सेकंड क्राइटेरिया आपका जो है इंटरेस्ट है। थर्ड क्राइटेरिया आपका उसकी लेंथ ऑफ द कोर्स है। और फोर्थ क्राइटेरिया आपका फिर उसमें स्कोरिंग ट्रेंड है जो कि वेरी करता रहता है। इन बेसिस के ऊपर आप अपने ऑप्शनल सेलेक्ट करो। मेरे ऑप्शनल्स अकाउंटिंग थे, उसके अंदर दैट वाज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, जनरली 200 नंबर का था जो है ना। इसी की तरह इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस अच्छा सब्जेक्ट है। आजकल जो है इंटरनेशनल रिलेशंस जनरली लोअर स्कोरिंग है, बट नेवरदलेस जो है ना अगर कोई अच्छा करना चाहता है, देखो ये बात याद रखना, हमारे साल में ही मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ साथ के, मोहम्मद मुर्तजा इज अ वेरी गुड कैंडिडेट जो है ना, और उसने इंटरनेशनल रिलेशंस जिस सब्जेक्ट के अंदर इतने ज्यादा लोग नंबर नहीं लेते हैं, उसने उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा नंबर जो है ना स्कोर किए थे। सिमिलरली जो है अबरार भट्ट है मेरा जो है बैचमेट, जिसने जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर 150 के करीब जो है ना नंबर लिए थे, विच इज जनरली नॉट पॉसिबल, लेकिन उनको शौक था, वो पढ़ते थे। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, कॉम्पिटेंसी हो, तो आप उसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं। तो मेरे सब्जेक्ट्स एज आई सेड अकाउंटिंग, इंटरनेशनल लॉ, जेंडर स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर स्टडीज, इंटरनेशनल लॉ, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। और ये है कि हर बंदे की अपनी ये डिसीजन मेकिंग होती है, तो इस वजह से दैट इज अ पर्सनल चॉइस। तो आप जो है उसको अपने क्राइटेरिया, अपने बैकग्राउंड, अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से चूज करते हैं। सो चूज दो सब्जेक्ट्स दैट आर गुड फॉर यू। और अगर आप कंफर्टेबल है उससे तो with any combination you can ace the CSS exam. That's good. Thank you for the great answer. यही बात इनको बताइए कि obviously they have to choose, but sometimes obviously candidates are new, they are confused in. इनको allow भी किया जाएगा in that new feature. They will be allowed कि they can come, yeah, they can access the classes, 1 or 2 classes of all the subjects free of cost. कोई मसला इनको नहीं है। उसके बाद ये देखेंगे scoring natures, जो भी आपने criteria accordingly बताए हैं। Even then we will be helping them select their optionals. उनको help की जाएगी कि वो अपने options को select करें। अच्छा, thank you once again अबेद। अच्छा अबेद, would you slightly brief your आपने already जिक्र कर चुके हो अपनी preparation strategy का, so what will you recommend कि अभी जिन्होंने start करना है CSS 2022 की preparation start करनी है, उन्हें अभी से क्या करना चाहिए? How should they avail this time? ये कोरोना वायरस pandemic में due to disruption in their learning experience, what would you briefly suggest them the steps जो उनको ये अभी follow करने चाहिए, those who are CSS aspirants? And a guidance for all those जो अभी appear भी हो रहे हैं, 2021 में appear हो इसके रहे हैं। अंदर जो सबसे पहली, आई होप आपको आवाज आ रही है मेरी। हाँ, I can hear you. Please carry on.
अच्छा चलो, इसके अंदर जो सबसे पहली जो इसके अंदर जो है ना चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आ, जब आप सीए से स्टार्ट करो तो एक दो चीजें जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करना, ताकि किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के अंदर आपने जो है जब अटेम्प्ट करना है, आपने जो है काम करना है, तो आपने उसके अंदर उसकी एक्सप्रेशन के लिए आपके पास वो अंग्रेजी होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें आप क्या करो, देखो तरीका ये करो कि अभी से ही जो बच्चा जो है बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहा है वो क्या करे कि डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, आपके ओपिनियन पीसेस जो उनके हैं, आपकी जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ना शुरू करें। अब आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपने सिर्फ उसको कंटेंट की बेसिस पे नहीं पढ़ना कि उसमें लिखा क्या है, क्या बात की है, वो तो आपने देखना ही है, बट उसके साथ आपने देखना है कि उसने इंग्लिश कैसे इस्तेमाल की है, कौन सा लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है, कैसा ग्रामर उसने इस्तेमाल किया है, कॉमा लगाया तो किधर कॉमा लगाया, फुल स्टॉप लगाया तो किधर लगाया। शुरू से ही चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करो आज से ही, ताकि आप जो है ना सिर्फ ये पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन पढ़ते हुए आप उसके साथ एक अपनी जो है इंग्लिश भी इम्प्रूव कर रहे हो। फिर उसके बाद जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ लो तो कोशिश करो कि उस आर्टिकल को अगर तो आप अपने लफ्जों में थोड़ा सा 2 3 4 लाइनों के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हो तो वो करने की कोशिश करो, ताकि आपकी राइटिंग जो है उसके अंदर बन जाए। जो उसका क्रक्स है उसको 2 3 लाइनों में लिखने की कोशिश करो आप चीज को। अगर आप को उसको लिखने में भी इशू होता है तो आप एग्जैक्ट आर्टिकल जो है उसको, अगर आपकी बिल्कुल इंग्लिश का इशू है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो आप उसको एग्जैक्ट लिखना शुरू कर दो जो है ना, क्योंकि आपके पास टाइम है। कहने का मतलब है कि जब आप उसके हाथ से जो है ना आप गुजारते हो तो आपका एक्सप्रेशन ठीक होता है, आपका उसके साथ जो है आपकी ग्रामर ठीक होती है। ग्रामर की कुछ किताबें हैं, ग्रामर के आपके पास किप्स में भी रिसोर्सेज होंगे, तो उनकी जो बेसिक ग्रामर की चीजें हैं, कॉमा किधर आता है, वो चीजें आती है। तो सबसे पहले तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। द सेकेंड एस्पेक्ट इज अपनी एनालिटिकल ओपिनियन जो है डेवलप करो। एनालिटिकल ओपिनियन बार बार सारे कहते हैं कि करो करो एनालाइज करो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि कभी भी कोई न्यूज पढ़ो तो उसको सिर्फ ये ना देखो कि वो न्यूज क्यों हुई, कि मतलब क्या न्यूज है, जो है ना अफगानिस्तान के अंदर डील हो रही है तो जो है ना पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, ये न्यूज आपने पढ़ी है, ये न्यूज सारी दुनिया ने पढ़ी है, हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, सबको पता लग रहा है। बट आपने देखना है कि इस अफगान डील की क्या रिpercussions हो सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर, इस अफगान डील के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, इससे अगर अमेरिका इधर से जो है यहाँ से अपनी फौजें निकाल के लेके जाता है तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, रिलीजियसली, हर तरह से हर न्यूज को डायसेक्ट करने की कोशिश करो कि उसके कॉजेज क्या थे और उसके रिpercussions क्या होंगे। रिpercussions का मतलब होता है उसके इफेक्ट्स, उसके आउटकम्स Hear क्या me? हो सकते हैं कि अगर ये चीज इस तरह हुई तो ये जो चीजें है ना ये आपको आपके माइंड को तेज करेंगी। तो इस तरह आप न्यूज के बारे में सोचना शुरू करो, डिस्कस करना शुरू करो कि यार ये हुआ है तो इससे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। और याद रखो कि आज से आप ए पॉलिटिकल हो, आपका कोई सियासी पार्टी नहीं है, आपकी कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने अपने एनालिसिस को रैशनल रखना है। ये नहीं कहना कि इंडिया पे हमला कर दे और जाके कश्मीर जो है ना उनसे लेके आ जाए, ये हो नहीं सकता, ठीक है। इस तरह की चीज अगर आपके एग्जाम में होती है, देखो याद रखो कि ये एग्जाम जो है किसी डिग्री के लिए एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम आपका जो है ना मेच्योरिटी टेस्ट कर रहा है, आपके आर्ग्यूमेंट्स की मेच्योरिटी टेस्ट कर रहा है। क्योंकि आज जिस पोजीशन पे जैसे हम लोग बैठे हैं तो हम यहाँ बहुत सारे ऐसे दिन में फैसले लेते हैं जो लोगों की, हजारों लोगों की जिंदगियों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर जो है मेरे माइंड की या मेरे आर्ग्यूमेंट्स की जो मेच्योरिटी है वो देखने के लिए ये पूरा एग्जाम है। तो इस वजह से आप जो है एक रैशनल आर्ग्यूमेंट रखो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखो, और जो है आप आहिस्ता आहिस्ता जब तैयारी शुरू करो उसको नोट्स में कन्वर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने बुक्स पहले तो लिमिट कर लो, ठीक है। एक जो मैं आपको अगर पूरी इस प्रोसेस के बारे में इफ यू अलाउ अवैस तो मैं जो है 2 3 मिनट आपको ये पूरे प्रोसेस का बता दूं कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर Sure, सकते हो। ये तो sure. हमने बात की ना स्टार्ट में। श्योर श्योर, अब गो ऑन गो ऑन। बल्कि एक आई जो वुड है लाइक टू सबसे ऐड वन पहले आप थिंग। क्या करो, सबसे एक पहले चीज मैं आप बीच जो में है ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो हमारा टीचर है, ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी प्रोवाइडेड टू देम। हर चीज, मटेरियल, रिसर्च बेस्ड मटेरियल्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, न्यूज पेपर, मतलब हर चीज
वीडियो लिंक्स, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ इनको मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फिजिकल लेक्चर का इनको मतलब फायदा ही होगा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि दे विल फाइंड इट बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू फेस लर्निंग, क्योंकि इनका काफी सारा टाइम भी बचेगा, इनका ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इनके मिसलिनियस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बचेंगी। इनको वही इंस्ट्रक्टर के साथ मतलब रेगुलर इंटरेक्शन, रेगुलर असाइनमेंट चेकिंग, क्विज फैसिलिटी, वो सब कुछ इनको मिलेगा। और जो आपकी बात से मुझे लगा है वो ये है कि व्हाट एबिलिटीज दे नीड टू इंस्टिल विद इन देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह आपने कहा था कि डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो सारी चीजों की, और व्हाट डिड एक्चुअली हैपन, इन सब इवेंट्स का पता होना जरूरी है, फैक्ट्स का पता होना जरूरी है। देन दे मस्ट डेवलप विद इन देमसेल्व्स द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट the implications of certain event, predict the repercussions on certain, that's something called analysis। ओपिनियन अपनी मतलब एक, जैसे कश्मीर की बारे आप बात कर रहे हो, मतलब लेकिन रैशनली एक क्लियर स्टैंस ले आना, इनको स्टैंस अपना डिफेंड करना, स्टैंस अपना बनाना, अपना डिफेंड करना, लिख कर बताना, दीज ऑल आर एबिलिटीज दैट दे नीड, व्हाट आई कैन इन्फर फ्रॉम योर टॉक। ठीक है, तो उसके कैरी ऑन अवैध, जो आप कह रहे थे अभी। अच्छा, इसके अंदर जो बातें हैं वो अगर मैं क्विकली आपको एक ओवरव्यू दूं इस सारी की सारी सिचुएशन का कि अब आपने क्या करना है, तो बेसिकली आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले, जो मैंने आपको बताया है, अपनी इंग्लिश को ठीक किया। तो अगर एक स्टेप बाय स्टेप हम तरीके से चले आपके एग्जाम तक, तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने अपनी इंग्लिश ठीक की, आपने अपनी राइटिंग ठीक की और एनालिटिकल एबिलिटी बनाई। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह करना है, क्या इसके टूल्स हो सकते हैं। द सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आपने जो है अपनी किताबें जो है सिलेक्ट करनी है और किताबें रिस्ट्रिक्ट करनी है। बहुत ज्यादा किताबों में नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो याद रखो कि आप जितना सीएसएस को फैलाओगे उतना सीएसएस आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। एग्जैक्टली। तो इस वजह से रिस्ट्रिक्ट करो आप सीएसएस की किताबों को। अपनी जो है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ऑब्वियसली जो है ना, हर बंदे का एक अपना उसके अंदर तरीका है कि आप 2 सीएसएस की किताबों के अंदर लेके जाओ। जो है एक सीएसएस स्पेसिफिक जैसे किप्स वगैरह की जो किताबें हैं वो देख लो, और उसके साथ दूसरी जो आपकी सीएसएस की रेफरेंस बुक्स होती हैं उनको आप देख लो। क्योंकि एक किताब जो है वो सीएसएस सिलेबस के हिसाब से बनी होगी तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको एक बेस आइडिया मिल जाएगा। और दूसरी जो किताब है वो उसके अंदर मीट ऐड करने के लिए, आइडिया ऐड करने के लिए, कुछ चीजें कमी रह गई है तो उनको पूरा करने के लिए आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद किताबों के बाद जो है, याद रखो कि सबसे पहली जो आपकी सोर्स है, आपकी किप्स की क्लासेस अगर हो रही है तो आपकी ये क्लासेस हो गई, ये पहली सोर्स हो गई आपकी। दूसरी सोर्स आपकी हो गई आपकी किताबें, और तीसरी सोर्स हो गई जो आपकी ऑनलाइन जो है, अगर आपको कोई रिसोर्स मिलती है। इन 3 सोर्सेज को इकट्ठा करके आप जो है बुलेट फॉर्म के अंदर अपने नोट्स बनाते हो, जो कि शॉर्ट नोट्स होते हैं, ताकि मुझे दोबारा इन चीजों के ऊपर से गो थ्रू ना करना पड़े। जो क्लास में मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने बुक से पढ़ा है और जो मैंने ऑनलाइन सर्च की है, उसको सारे को इकट्ठा करके बुलेट फॉर्म में टू द पॉइंट जो है मैं नोट्स बना लूं अपने, जिसमें मेजर जो उसके आइडियाज है, कश्मीर का इशू है तो उसके कॉज इफेक्ट सोल्यूशन, जो उसके मेन जो डायमेंशन है उनको कवर कर लूं। नोट्स याद रखना कि हमेशा डायनामिक होते हैं, शॉर्ट होते हैं। डायनामिक से मतलब ये है कि वो बदलते रहते हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसी न्यूज हुई कश्मीर के ऊपर, कोई ऐसी नई मैंने न्यूज पढ़ी है तो मैं अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लूंगा। अब आपने किताबें पढ़ ली, नोट्स बना लिए, क्लासेस ले ली, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इसमें प्रैक्टिस के ऊपर जाना है कि इसमें अंशों जो है ना, इनके पास मॉक्स भी होते हैं, टेस्ट सेशंस होते हैं, ग्रेडिंग होती है आपकी। तो आपने जो है क्या करना है कि आपने जो है ये प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप उसको, अपने आइडियाज को, अपनी नोट्स को दोबारा तैयार भी करें और उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ आप जो है लिखने की प्रैक्टिस करें। जब तक आप वो नहीं करेंगे, ये बहुत असेंशियल बात है, बहुत सारे लोग पहली दफा जो है लिखना शुरू करते हैं एग्जाम में जाके, ये ना करना। क्योंकि जो है जब आप उसके ऊपर से गुजर जाते हैं तो आपको चीजें याद हो जाती है, आपकी रिवीजन हो जाती है और आपकी एक स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो आपने जब प्रैक्टिस भी कर ली, फिर उस प्रैक्टिस के बाद जो है आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे और जो है फाइनली अपने सीएसएस के एग्जाम के अंदर बैठ जाएंगे। सो ये एक आपकी स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसके अंदर आप जो है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टू द सीएसएस एग्जाम आप जो है अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जहां मिनिमम टाइम जाया करें। और आखिरी एक ये भी बहुत जरूरी बात है कि आप अपनी डेडलाइंस जो है सेट करें।
आज अगर आपके पास जो है 10-12 महीने हैं, 12 महीने हैं और आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 1 महीना है और 1 महीने के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर मैं इतना जो है चीज कवर करूंगा तो मैं जो हूँ मेरी वीकली इतनी जो है ना डेडलाइन होगी, डेली इतनी डेडलाइन होगी। ये बात याद रखें कि जो है ना ये सोचना कि कितने अरसे आप पढ़ते हैं, कितने घंटे आप पढ़ते हैं, ये फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल का मतलब कि यूजलेस है इन द सेंस कि कुछ लोग तेज पढ़ते हैं, कुछ लोग स्लो पढ़ते हैं। तो अगर आप जो है अपनी डेडलाइंस बनाएंगे, वो डेली डेडलाइंस आप कवर करें ताकि आप फाइनल जो है अपनी तैयारी खत्म कर सकें। एंड आई एम श्योर कि जो है जो किप्स का ये प्लेटफॉर्म है, एलएमएस का प्लेटफॉर्म, ये आपको इसमें हेल्प करेगा कि क्योंकि आपके साथ क्लासेस हो रही होंगी तो आई एम श्योर के साथ साथ आप अपने डिसिप्लिन भी मेंटेन कर लेंगे अपनी तैयारी के अंदर। सो इस वजह से आप ये चीजें जरूर करें, अपने लिए डेडलाइंस रखें और याद रखें कि ये सारी रिसोर्सेज, ये एलएमएस हो गया, इन पर्सन क्लासेस हो गई, किताबें हो गई, टीचर्स हो गए, ये सारी रिसोर्सेज आपको गाइड करने के लिए है। तैयारी आपने खुद ही करनी है। उससे आप कितना अच्छा अब्सॉर्ब करते हैं, कितना अच्छा आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, कितना उससे फायदा उठाते हैं, ये आपके और आपकी मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड है। और ये मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए कि अब्बू के लिए या अम्मी के लिए जो है मैं ये सीएसएस का एग्जैक्टली। एग्जाम दे रहा हूँ। मोटिवेशन आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर आप खुद कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप रातों को 2-2 3-3 बजे तक बैठ के जो है ना तैयारी करेंगे, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। बट अगर जो है आप सिर्फ लोगों के लिए कर रहे हैं तो ये जो है जर्नी बहुत लंबी है और इस जर्नी के अंदर जो है ना आपको मेहनत करनी पड़ती है। बट ट्रस्ट मी, इस मेहनत के बाद आपको बहुत ज्यादा सिला भी मिलता है अपनी मेहनत का। तो इस वजह से जो है ना स्ट्रक्चर बना के रखो और सिस्टमेटिक तरीके से काम करो। Thank you so much, Abed, for the incredible answer. अच्छा, last 10 minutes में we have to take their questions before उससे पहले कुछ additional, just very briefly, जो लोग अभी अपेयर हो रहे हैं, for example, in 2021, CSS 2021, जिनका 2 महीने बाद पेपर है, I hope पेपर टाइम के हो और we get rid of this bloody corona pandemic. Unfortunately, काफी लोग, काफी sectors, हर almost every human being is affected by this. तो उनके लिए जस्ट वेरी ब्रीफली, उनके लिए आप क्या गाइड करोगे जो इनका भी 1 या 2 महीने बाद पेपर है? बिफोर वी मूव टुवर्ड्स एलएमएस फीचर, सम ब्रीफ ओवरव्यू जो हम फीचर्स ऑफर कर रहे हैं और क्यों ऑफर कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर, सो इन लाइट ऑफ दोज रीजंस फॉर फेलियर उन फीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है जिस तरह आपने अभी बताया, सो सम स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट दैट, और उसके बाद फिर योर लास्ट गाइडेंस, और देन वी विल बी गोना बी टेकिंग सम क्वेश्चंस। बाय एंड लार्ज क्वेश्चंस मेरा ख्याल है हमारे कवर हो चुके हैं, एंड माशाल्लाह यू हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट जो भी कैंडिडेट सुनना चाह रहे हैं एज पर माय एक्सपीरियंस। जी अच्छा, क्विक मैसेज फॉर ऑल दोस्त जो कि जो है अभी कर रहे हैं और जो है क्यों लोग फेल होते हैं, मेजर रीजंस क्या हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं, एग्जैक्टली। देन विल टेक द क्वेश्चंस एज वेल। सो क्विक ओवरव्यू, बेसिकली ये सूरत हाल है कि देखो आपके लिए टिप्स यही है कि क्वेश्चन को समझो। जब आप क्वेश्चन के अंदर बैठते हो, एग्जाम आपका आने वाला है, हो सकता है ये एग्जाम डिले हो जाए थोड़ा सा सीएसएस कोरोना की वजह से, बट नेवरदलेस आपने तैयारी ऐसे ही करनी है जैसे जो है ना इट्स ऑल बिजनेस एज यूजुअल। तो आप तैयारी अपनी रखो ताकि जो है अगर आपको टाइम ज्यादा मिलता है तो वो जो है ना टाइम आपके फायदे में ही जाता है। ठीक है, एक तो ये है, एक प्रैक्टिस की कोशिश करो अपने अंदर। एग्जाम में बैठने से पहले जो है ना, आज आप घर पे बैठे हो, कोई मसला नहीं है, अपनी घड़ी लगाओ, टाइम लगाओ, पास पेपर निकालो, लिखना शुरू करो और जो है ना एक ऐसे लिखो अपने 3 घंटे लगा के, या आप अपना कोई एग्जाम जो है पाकिस्तान अफेयर्स का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी करंट अफेयर्स का आप जो है ना वो करना शुरू हो। सो आपको अगर जो है मॉक सेशंस वगैरह, मॉक टेस्ट सेशंस वगैरह जो है कोरोना की वजह से मुश्किल हो रहे हैं, तो आपको एक ये भी हेल्प, आप खुद से भी इसको लेके चल सकते हो। दूसरी जो बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन के अंदर उसने जो चीज पूछी है, एक मेजर रीजन फेल होने का ये होता है कि उसने बात कुछ और पूछी होती है और हम जवाब कुछ और दे रहे होते हैं। और जो है ना इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सीएसएस में जान के वो सवाल इस तरह बनाते हैं कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी उसकी मुश्किल हो। अगर जो है उसने सवाल के अंदर कॉज इफेक्ट सोल्यूशन जो है ना एनर्जी क्राइसिस के पूछे हैं, तो याद रखो कि इक्वल नंबर हैं कॉज के, इफेक्ट के और सोल्यूशन के। उसके बाद तो आपने तीनों चीजों को कवर करना है। सिमिलरली अगर आपके 4 सवाल है तो याद रखो कि पहले सवाल के भी उतने ही नंबर है जितने आखिरी सवाल के हैं। तो इस वजह से अपने टाइम को मैनेज करो कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सको उस टाइम को। एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए यही चीज है कि एस्से को पहले एक दफा गौर
से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, और ऐसे के जो है जो इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको आप देखो कि वो कहना क्या चाह रहा है। पहले तो पूरी तरह ऐसे को समझने की कोशिश करो कि वो जो आप टॉपिक उठा रहे हो उसके अंदर उसने पूछा क्या है। दूसरी जो बात है, आपने उस टॉपिक की सारी जिंदगी की हिस्ट्री जो है एक्सप्लेन नहीं करनी है। अगर उसने आपसे पूछा है कि सॉल्यूशंस टू कोविड-19, तो आपने उसको शुरू ही सॉल्यूशन से बात करनी है कि आगे के पैंडेमिक्स और इन चीजों के लिए और कोविड-19 के लिए हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, और फिर उसके बाद बताना है कि सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में इश्यूज क्या होते हैं, और आपने बताना है कि कॉजेस क्या। लेकिन याद रखो कि जो टॉपिक या जो पॉइंट उसने सबसे पहले पूछा है उसकी, या जो उसने प्राइमरीली पूछा है उससे आपको स्टार्ट करना है, ताकि उसको किसी टाइम में ये फील ना हो कि आपने टॉपिक समझा नहीं। थीसिस स्टेटमेंट आपका क्लियर स्टांस होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर, तो आपका क्लियर स्टांस होना चाहिए कि आपने जो भी बात की है, जो भी आपने एसए आरक्यू किया है, तो उसके अंदर आपका क्या स्टांस है। सो दैट दोज आर अ फ्यू थिंग्स, फ्यू टिप्स जो कि जो है। और उसके साथ ये है कि पेपर प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखो, मार्जिन्स पूरी Exactly, करो, exactly. मार्कर से आप अपनी हेडिंग्स बनाओ, अपनी लाइन जो है छोड़ो, हेडिंग के बाद, हेडिंग से पहले कोटेशन लिख रहे हो तो बीच में करके लिखो। ये छोटी छोटी चीजें आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर देती है। कोई अच्छी चीज है तो उसको ब्लैक पेन के अंदर हाईलाइट कर दो, निकल आए वो सामने। फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स, इन चीजों को इस्तेमाल करो ताकि आप जो है उसके पेपर को अपना स्टैंड आउट करा सको आप इस सारी की सारी चीज में। All right, thank you so much, दोज Abed. वर द मेन आइडियाज। और अब आप क्वेश्चंस ले लो ताकि फिर हम इसको समझ सकें। आफ्टर जस्ट 10 मिनट्स थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया उनको अबाउट दैट फीचर, और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये लोग इट विल बी रियली अ सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर देम। और आई होप सब बच्चे बहुत ही सीरियस इसको ले रहे हैं, बिकॉज कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द वन हु हैज ऑलरेडी proved himself to be mashallah the topper of CSS, जिस एग्जाम के लिए वो एस्पायर कर रहे हैं, the live example is sitting there in front of them. तो ये टिप्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दीज टिप्स। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले जिस तरह आपने बताया था, आपकी बात से जो मुझे अंदाजा हुआ है कि कैंडिडेट्स को एक तो डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की, और फिर ये कि उनको प्रॉपर उन फैक्ट्स को सामने रख के एनालिसिस करना आना चाहिए, प्रॉपर मतलब उसकी इमीडिएट इम्प्लीकेशंस, रेपरकशंस प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए, उनको एक क्लियर स्टैंस लेना आना चाहिए। उसके बाद एज यू टोल्ड कि उनको लिख कर वो डिफेंड करना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपका माइंड नहीं होगा, एग्जामिनर के पास आपकी राइटिंग जाती है, और वो क्लियरली जो मतलब आंसर को डिकोड, जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है, टेक्निकली उसको डिकोड करना है, यू हैव टू फ्रेम अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन यू हैव टू मेक एन आउटलाइन ऑफ द आंसर प्रॉपर, और पूरा आपने आंसर अटेम्प्ट करना होता है। दैट्स अ रियली अ चैलेंजिंग टास्क। तो इन सब चीजों को, और जो लोग ये नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली it results they are not able to make their way into the exam through the make their way to CSS, unfortunately. तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस ने लर्निंग एक्सपीरियंस जो एक ट्रेडिशनल था, मतलब फेस टू फेस लर्निंग, दे यूज्ड टू कम टू अकेडमीज, उसको डिसरप्ट किया है, लेकिन living up to our promise of providing them the best possible services, और most importantly uninterrupted learning experience, क्योंकि जब भी इस तरह का कोविड आया और एनी अदर कैलेमिटी इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आज के बाद दुनिया हमेशा अवेयर होगी कि कुछ भी इस तरह का आ सकता है, विच कैन अफेक्ट देयर सोशल इकोनॉमिक लाइफ एंड विच कैन अफेक्ट देयर लर्निंग एक्सपीरियंस खास तौर पे। तो ये बैक जब ये कोरोना के पीक मंथ थे ना, लाइक मार्च, तो हम लोगों ने डेलिब्रेट किया इसके ऊपर कि व्हाट शुड बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो फेस टू फेस लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑपरेट था। उस पर पूरी दुनिया में मतलब, और इनफैक्ट बाकी जगहों पर इमीडिएटली तो हमें, क्योंकि प्रेशर था स्टूडेंट्स का, तो इमीडिएटली हमें रिजॉर्ट करना पड़ा कुछ ऑल्टरनेट मीन्स के, जैसे गूगल मीट था, जूम के ऊपर क्लासेस थी। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, वो भी इतना अच्छा डिलीवर नहीं हो सका, मतलब स्टूडेंट्स के सेटिस्फेक्शन लेवल इट वाजंट अप टू द मार्क इन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, वो मुश्किल वक्त तो चलो यूज कर लिया, खास तौर पे किसी का नेट कनेक्शन इंटरप्ट हो जाए तो वो ऑनलाइन, there is a difference between online learning and distance learning. So what we decided, state of the art feature, first of its kind, that is I personally believe unmatchable learning management system. It comprises all the recorded lectures कि जितने भी आपके subjects हैं, English essay, English general, Islamiyat, all compulsory subjects, all 6 compulsory subjects and optionals as well. उनके एक recorded lectures हैं, through those lectures जो मैंने कहा है कि टॉपिक में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, पार्शली ये कि फोकस मटेरियल लेक्चर्स के थ्रू वो हो जाती है। उसके बाद लेक्चर्स आर फॉलोड बाय मटेरियल, मतलब उनको साथ ही पब्लिकेशंस प्रोवाइड की जा रही है, उनको बुक्स प्रोवाइड की जा रही है, उनको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, उनको लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स, उनको ग्लोबल एज मैगजीन, उसमें सम ऑफ द टिप्स पब्लिकेशंस एज यू कैन सी
mind of general knowledge, current affairs, general science and ability, publications. Yes, they're gonna be going after taking the lectures. उसके बाद वो पढ़ के आएंगे और उसके बाद it will be followed by a quiz after every 1 or 2 sessions. उनका अपना एक टेस्ट होगा, because you know one thing, अपनी evaluation आपने कहा था randomly पढ़ने का फायदा नहीं है. I'm seconding you. Randomly पढ़ने का फायदा नहीं है unless we are evaluating ourselves. हमने proper targets बनाए हो, तो अपनी इवैल्यूएशन के लिए वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट क्विजेस भी हैं. जिस तरह मतलब आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर देख रहे होते हो कि मतलब ऑनलाइन आपने क्विज दिया, यू डोंट हैव टू वरी, आपको फिजिकली कैंपस में आने की जरूरत नहीं है फॉर योर हेल्थ एंड सिक्योरिटी कंसर्न. यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, यू नीड नॉट कम टू द कैंपस. आपने वहीं पे क्विज देना है और उसी वक्त वहीं पे मार्किंग हो जाएगी. लाइक एक शशके की तरह, मतलब वो पाई चार्ट उस तरह करके, मतलब आपको रिजल्ट्स भी वहीं के वहीं डिस्प्ले हो जाएंगे. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि राइटिंग बहुत जरूरी है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है. अब ऑल्दो इवन इफ दे आर नॉट एबल टू कम फिजिकली टू द कैंपस, इफ दे आर नॉट एबल टू फेस मीट, लेकिन वो अपनी असाइनमेंट्स रोज के रोज उन्हें आफ्टर रीडिंग मटेरियल, आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग, आफ्टर टेकिंग लेक्चर एंड देन रीडिंग एंड देन उनको जो असाइनमेंट्स करने का मौका, मतलब उनको प्रॉपर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आफ्टर एवरी लेक्चर. वो क्वेश्चंस अपना अटेम्प्ट करेंगे, दे गोना बी टेकिंग द स्नैपशॉट्स ऑफ द क्वेश्चन, दे गोना बी अपलोडिंग द क्वेश्चन, और वहीं पे टीचर मार्क करेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स हैव द चांस टू गिव द फीडबैक एज वेल, कि अगर वो टीचर की मार्किंग से या टीचर्स के साथ इंटरेक्शन के बाद वो सेटिस्फाई हो या नहीं. एंड दैट्स समथिंग वेरी यूनिक जो मैं समझता हूँ. आई जस्ट रिमेंबर अवैध कुछ अर्सा पहले, again that's my personal opinion, I heard an interview about one of the senior professors, Professor Dr. Hood Boyle. Unfortunately he was heard कि उनको एक यूनिवर्सिटी से निकाला था. No one knows exactly the reason, because you know we don't need to indulge in unnecessary controversies. But उनकी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर he said कि he used to propagate something, an idea कि टीचर्स के ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने चाहिए, ताकि हमारे पास it should be fair and transparent, it should be clear what a person is presenting. So that's the best possible thing in this LMS feature. Everything is open. अब recorded lectures हैं, अब वो वाला system नहीं है, for example, and that's a very sad reality all around the world, especially जो हमारे developing countries हैं. वहाँ पर universities हो गए, मतलब few universities, I don't want to name specific, and even what according to students feedback जो मतलब आकर बता रही all over Pakistan, जो कुछ academies हैं, क्योंकि टीचर्स का कुछ ये होता है कि एक्सपोजर लेवल इतना होता है कि वो घंटा डेढ़ गुजारना आता होता है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, आर दे डिलीवरिंग अप टू द मार्क? नाउ एवरीथिंग इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. दे कैन रेट द टीचर, दे कैन रेट देयर मार्किंग, दे कैन रेट द असाइनमेंट, दे कैन रेट एवरीथिंग नाउ. तो ये जो फीडबैक फीचर है, आई रियली लाइक दैट फीचर. तो जो भी फिजिकल सेशन में या फेस टू फेस लर्निंग में उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, लेक्चर्स, क्विजेस, असाइनमेंट, चेकिंग, और एक अहम चीज होती है, आई जस्ट रिमेंबर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें एकेडमी से इन टच रहना जरूरी होता है, बिकॉज घर बैठकर हमें उतनी मोटिवेशन नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि घर बैठकर हम अकेले होते हैं, हमारा लर्निंग का लेवल या हमारा स्टडी का लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को आकर फिजिकली देख नहीं सकते, और जब बाकी पढ़े होते हैं तो हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलती है. डियर ऑल, ऑनलाइन का एक ड्रॉबैक है कि ऑनलाइन में आपकी पेस उस तरह नहीं हो सकती जो आप फिजिकल, लेकिन देयर इज अ स्पेशलाइज्ड फीचर जिसको लीडर बोर्ड कहते हैं. अब लाइक किसी बैच में 10 to 15 एडमिशंस हुए हैं, सबकी परफॉर्मेंसेस सामने होंगे. इट इज इंक्रीजिंग कंपेटिटिवनेस. वही जो फीचर है जो मतलब ऑन आपका फेस टू फेस आप आते हो, लोगों को देखते हो पढ़ते हुए, एंड यू गेट मोटिवेटेड, आप कंपटीशन की आपको एक सेंस आती है. कंपटीशन इन अ वेरी पॉजिटिव टर्म, नॉट कन्फ्रंटेशन, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस. एग्जैक्टली दैट थिंग इज प्रोवाइडेड. तो इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, ऑल्दो एट फर्स्ट आई बिलीव कि फेस टू फेस का ऑल्टरनेट निकल ही नहीं सकता था, लेकिन वंस वी हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड दिस, आई बिलीव कि इस वक्त इट्स नॉट ओनली एन ऑल्टरनेट, इट्स रादर बेटर, बिकॉज इट सेव्स द मोस्ट प्रेशियस थिंग ड्यूरिंग योर CSS जर्नी, व्हिच इज टाइम. खासतौर पे वो लोग जो फार फ्लंग एरियाज में हैं, खासतौर पे अच्छा वो लोग जो रह जाते हैं, दोज हु आर मोटिवेटेड, उनकी इनर डिजायर है, जिस तरह आपने अपना बताया, उनकी इनर मोटिवेशन है, उनकी इनर डिजायर है, लेकिन वो कर नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस डू नॉट अलाउ देम, देयर जॉब आवर्स डू नॉट अलाउ देम. उनकी पोस्टिंग मुल्क से बाहर है, या उनकी मतलब यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी उनकी उन एरियाज में है कि दे कांट एक्सेस एकेडमी, जो एक ट्रेडिशनल मेथड था लर्निंग का. सो इट्स गुड न्यूज फॉर देम एज वेल, इट्स अ सरप्राइज फॉर देम एज वेल. नो, आई कांग्रेचुलेट देम, नाउ देयर इज अ चांस फॉर देम. कम परसू, कंपटीशन भी इसका इंक्रीज होगा, यू विल बी फाइंडिंग मोर कंपेटिटिवनेस, और हर चीज आपको मिलेगी. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू, इट्स नॉट कि आपको सिर्फ
LMS फीचर से ही एक्सेस होगा, मतलब आपको एक आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह व्हेन दिस पेंडेमिक सबसाइड्स, यू आर वेलकम टू कम एनी टाइम, किसी भी वक्त आप लोग अकेडमी आ सकते हो, और हमारा पूरा साल टिल द लास्ट मिनट ऑफ योर एग्जाम यू कैन कॉल एनी ऑफ द एकेडमिक काउंसलर। इफ यू कैन विजिट, फील फ्री टू विजिट। इफ यू कैन if you can't visit, if you want to save some time or you want to save the traveling cost, no need, no worry, सीधी सी बात है, आप अपना किसी भी तक एकेडमिक काउंसलर को आप किसी वक्त एक्सेस कर सकते हो। यू कैन एक्सेस कैश ऑन एनी ऑफ द फैसिलिटी, आप लोग असाइनमेंट्स लिखकर चेक करवा सकते हो टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। क्विज़ेस भी हैं, मॉक टेस्ट सेशन भी हैं, अभी भी हाफ लेंथ सेशन चल रहा है। पीपल वर वरीड, आई जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स वर वरीड कि हम किस तरह टेस्ट देंगे सर, अभी ये तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया सब कुछ। नो वरीज, as it is उसी तरह ही काम चल रहा है। You just have to write down in that given time, you have to take the snapshots, you have to submit it, आपकी उसी तरह डिटेल मार्किंग होगी, then there will be a detailed feedback session, detailed discussion session, one-to-one interaction session with the instructors. So this was all about, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, that's our worry. Learn to adapt to all circumstances. This is the biggest, देखो प्रॉब्लम्स हमेशा दुनिया में थे। मैं हमेशा एक एग्जांपल कोट करता हूँ, if you see previous seminars as well, जहां 20th सेंचुरी में अल्लाह माफ करे जो प्रॉब्लम्स थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जो कोरोना वायरस है, दिस इज नथिंग एज कंपेयर्ड टू व्हाट द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी सीन बिफोर। मतलब अ लॉट ऑफ डिजीजेस लाइक कॉलरा, मलेरिया, स्पेनिश फ्लू, आज से 100 साल पहले तकरीबन स्पेनिश फ्लू था जिसने 50 मिलियन पीपल की जान, मतलब नियरली इट टुक द लाइव्स ऑफ 50 मिलियन पीपल। उसके अलावा अ लॉट ऑफ अदर टेरिबल इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर 2, देन कोल्ड वॉर एंड अदर वॉर्स इन बिटवीन देम। तो इतनी ज्यादा कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स दुनिया में गुजरे हैं, आई मीन टू से कि हर वक्त कोई ना कोई कैटास्ट्रोफी, इंक्लूडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस लाइक कॉलरा, प्लेग। लेकिन उस दौरान भी लोगों ने अपने कैरियर्स बनाए थे। उन सब प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज बनाकर हमने बैठ नहीं जाना। वी हैव टू राइज अबव ऑल दीज चैलेंजेस। दिस इज द एबिलिटी दैट डिफरेंशिएट्स वन पर्सन फ्रॉम अदर पर्सन। Your ability to remain positive in all situations, in every circumstances, your ability to adapt. अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, I just remember adapting to these gadgets, adapting to this state of the art technology. जो सबसे बड़ा ट्रेट है इंसान का वो ये कि remain positive in every situation and adapt to every, अब ये circumstances आनी है, this is inevitable, but we have to adapt to these situations. I would like to comment, I would like you to comment on just motivate them for online learning, क्योंकि इस कोविड के क्राइसिस में they need not worry, they need not sit idle, और उनको रियलाइज होना चाहिए कि हर क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी है। सो हाउ कैन दे अवेल दिस पर्टिकुलर टाइम, जो 2-3 मंथ्स, एंड आई होप इंशाल्लाह आफ्टर जल्दी बल्कि ये क्राइसिस खत्म हो जाए। सो हाउ कैन दे पॉजिटिवली अवेल देयर टाइम, और उसके बाद वी आई जस्ट टेक द क्वेश्चंस जो उन लोगों ने पूछे हुए हैं, उसके वो हम आंसर्स देंगे। काइंडली टेल देम कि हाउ शुड दे अवेल देयर टाइम। अवैस आप ऐसा करो, 2-3 आप क्वेश्चंस भी साथ ही मुझे बता दो, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग राइट आफ्टर दैट, तो इंशाल्लाह ताकि मैं ये आपकी मोटिवेशन भी और जो है ना 4-5 जो इनके लिए 2-3 महीने हैं उसमें किस तरह काम करें, और बाकी भी आप क्वेश्चंस बता दो, आई विल राइट इट डाउन एंड इकट्ठे ही आई विल आंसर टुगेदर एंड आई विल सम अप द डिस्कशन इंशाल्लाह। तो आप क्वेश्चंस बता दो अगर जो 2-3 हैं जो इम्पोर्टेंट। Walaikum salam everyone and thank you so much for praising. अच्छा अवैत, please talk something about PMS. कुछ लोगों का कंसर्न है, अच्छा कुछ लोगों का कंसर्न है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड है लेकिन IR इस जैसे सब्जेक्ट्स उठाना क्या उनके लिए पॉसिबल होगा? अच्छा ठीक है, बाय एंड लार्ज बाकी जो पूछे हुए हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लाइक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मोटिवेशन और सब्जेक्ट्स के बारे में, और काफी हद तक कवर हो चुके हैं। सो जस्ट टेल देम कि हाउ कैन दे अवेल दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक एंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। मतलब ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, दे शुड नॉट बी demotivated by this, rather they should learn to adapt to this state of the art technology, or what's additional advantage to them about this. बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल
जो हम ये डिस्कशन की अवैस ने आपको बताया, दिस दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और बहुत अच्छा काम है कि एलएमएस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है ना आपकी लर्निंग को एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आए। हम जब बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी होते थे तो एलएमएस सिस्टम जो है ना वो बहुत यूज़फुल था जो हमारी लर्निंग के लिए। तो अगर ये सीएसएस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड जो है ना इनिशिएटिव। सिमिलरली ये है कि देखिए जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन है उससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने घर बैठे जहाँ भी आप बैठे अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर जिस मर्ज़ी टाइम पे आप चाहें, आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, आप चीज़ों को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ ये है कि जो है ना आपके जो एंड के 2-3 महीने होते हैं ये बड़े यूज़फुल होते हैं क्योंकि आपकी तैयारी मोर और लेस हो चुकी होती है बट आपको वो एक्स्ट्रा जो है ना इम्प्रूवमेंट की चीज़ें जो है ना नज़र आती हैं। अगर इसके ऊपर एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम भी है जहाँ आपकी चेकिंग है, जहाँ आपकी एज़ यू सेड कि आपका कर्व के ऊपर आपको रखा जाता है, आपकी ग्रेडिंग की जाती है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड वे जिससे जो है ना आप अपनी इवैल्यूएशंस करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये आखिरी टाइम के अंदर जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ-जहाँ से आपको पहुँच सकती हैं क्योंकि कई दफ़ा हम बहुत टाइम ज़ाया कर देते हैं आने-जाने में, अकेडमी में बैठने में और उन चीज़ों में। तो अगर एलएमएस का ऐसा कोई एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपकी ट्रैवल टाइम, आपका वो रुकना, आपका वो बैठना और उन चीज़ों को कैटर कर सकती है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो इस वजह से जो है ना आखिरी 2-3 महीने के अंदर प्रैक्टिस करो, अपनी जो है कमी-बेशी को पूरा करो, अपने नोट्स को जो है पूरा करो और इस ऑनलाइन सेटअप का जो है जितना फ़ायदा उठा सकते हैं काउंसलिंग से वो ज़रूर आप उठाओ। द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं, सबसे पहले तो अगर आपके साइंस का बैकग्राउंड है, तो आप आईआर जैसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि सीएसएस बना ही इसलिए है कि ताकि आपको अपनी कंफर्ट ज़ोन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेने हैं। मैंने कभी यूएस हिस्ट्री नहीं पढ़ा था, मैंने कभी आईआर नहीं पढ़ा था, कभी जेंडर स्टडीज़ नहीं पढ़ा था मैंने और अकाउंटिंग के भी जो है ना, एक पार्ट मैंने पढ़ा था और दूसरा नहीं पढ़ा था। बट सीएसएस का सिस्टम ही इस तरह है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो कई दफा आपने नहीं पढ़े होते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वो सब्जेक्ट्स केटर ही इस तरह होते हैं कि आप सब ले सकें उसको। तो इस वजह से आपके साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं बट आपका इंटरेस्ट आईआर के अंदर है तो आप जरूर लें। अगर आप फिजिक्स और बाकी साइंस के सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंसेज और ये चीजें कर सकते हैं तो जरूर लें आप उसको, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स को। बट नेवरदलेस सीएसएस के सब्जेक्ट्स इसी तरह ही बने हैं कि आप ले सकते हैं, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो हर कैंडिडेट इसी तरह ही करता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है पीएमएस के लिए, तो देखिए पीएमएस और सीएसएस का जो बेसिक लर्निंग का क्राइटेरिया है, तरीका है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, मोर और लेस वो सारी की सारी आपकी सेम है। कुछ सब्जेक्ट्स का फ़र्क है, जैसे आपकी उसमें उर्दू आ जाती है, आपकी जनरल नॉलेज आपकी उसके अंदर आ जाती है, तो उनके लिए भी आप आइडियाज़ और स्ट्रैटेजी आपकी मोर और लेस सिमिलर ही होती है, बट आपने ऑब्वियसली उसका कंटेंट बदल जाता है। तो जो पीएमएस और सीएसएस की तैयारी है, ये बहुत इंटरलिंक्ड है और याद रखो कि अगर आप ये तैयारी करते हो, तो पीपीएससी, एफपीएससी और जितने भी बाकी जो है ना ये एग्ज़ाम्स हैं, उनकी आपकी तैयारी साथ-साथ होती जा रही है। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स और बाकी जो है चाहे वो एडीएफआईए हो, एडीएलडीए हो, एडीनैप हो, बाकी चीज़ें हों, उन सब के लिए आप अप्लाई करें ताकि जो है आप किसी तरह से इन वन वे और द अदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ जाएँ और आके कंट्रीब्यूट कर लें। एन एंडिंग नोट फ्रॉम माय साइड इज़ बेसिकली कि देखो सीएसएस जो है, सिविल सर्विस जो है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप कुछ कर सकते हो, लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। इसके लिए अपनी मोटिवेशन रखो। जब आपको डिमोटिवेशन होती है तो याद रखो कि बहुत सारे और एग्ज़ाम्स हैं, जिन सब के एग्ज़ाम्स की तैयारी आप इसके अंदर कर रहे हो और हमारे साथ जितने दोस्त थे जिन्होंने अच्छी तरह तैयारी की थी, आज वो इन वन वे और द अदर गवर्नमेंट के अंदर हैं और काम कर रहे हैं और बहुत कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आपके पास एलएमएस, किप्स और इस तरह की एक अच्छी जो है वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो ज़रूर उसको यूटिलाइज़ करो, चाहे आप बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, केपी में हो, पंजाब में हो। आप अपने घर बैठे जो है इस्तेमाल कर सकते हो तो ज़रूर उसको यूटिलाइज़ करो। सीएसएस जो है वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम पॉलिसीज़ मेकिंग सर्कल्स में आ सकते हैं। इसके बाद भी आपकी जर्नी चलती रहेगी बट अभी अपना फ़ोकस सिर्फ़ रिटन के ऊपर रखो, अभी अपना फ़ोकस जो है मेंटेन करो, टाइम को डिवाइड करो, स्मार्ट तैयारी करो, एनालिटिकल ओपिनियन रखो और जैसे मैंने कहा इसको स्पेसिफ़िक करो, लॉजिक से सोचो,
और जो है CSS की अपनी मोटिवेशन पूरी रखो। दैट इज़ रियली यूज़फुल। और अगर मेरी मीटिंग अभी ना होती तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और देर भी ज़रूर बैठता, बट आपको पता है कि यहाँ जो है एक दफ़ा आप सर्विस में आ जाते हैं तो एक नया इम्तहान आपके लिए शुरू हो जाता है, तो फिर जो है फिर एक और काम शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है ना आवाम जो है वो आपकी सारी की सारी इंतज़ार में होती है। लेकिन it's always a pleasure to come to KIPS. It's always a pleasure to come to talk to the CSS students. और बहुत अच्छे आप लोगों के इनिशिएटिव्स हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ज़रूर जो है इनको देखें और इनको जो है अवेल करें इन अपॉर्चुनिटीज़ को। Thank you so much, एंड थैंक यू अवैस Abed, for being here. thank you for joining us, और God bless you in your future endeavors as well. I hope जो आपकी motivation जितनी strongly आपने बताया था, and you are really living up to that जो आप promise जो आपने अपना किया था, जो आपको लेकर आया था basically CSS में, and you are serving the humanity. माशाल्लाह आपकी posts भी नजर आती रहती हैं. It's really encouraging for all. So I hope you are satisfied with the service as well, or really you found कि indeed your decision was right. Thank you. Thank you, Abbas. And any last tip for the any last tip for before leaving for the aspirants? बिफोर जो अभी एस्पायरेंट्स है जो देना चाहते हैं उनको मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस को जो है ना जो अभी शुरू कर रहे हैं और जो अभी 2021 में देना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस के ऊपर जरूर काम करो। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी तैयारी जो है इम्प्रूव होती है, और अपने नोट्स को जो है इम्प्रूव करते रहो। कंटेम्परेरी अफेयर्स और जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर ज़रूर अपना नोटिस रखो, और जो है ना अपनी एक जो है ग्रास्प रखो। सिमिलरली बहुत सारे जो लोग हैं जो कि जो है ना जो देना शुरू करने लगे हैं, तो एक एनालिटिकल ओपिनियन से दुनिया को देखते हुए समझते हुए, CSS एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर आप पढ़ो तो आपको दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ पता लगता है, आपकी अपनी लाइफ बहुत ग्रूम होती है। और जब आप ये CSS कर लो तो याद रखो कि जो आप सीखते हो ये इसको फैलाओ, इसको लोगों तक लेके जाओ, इसको इल्म जितना आप बांटोगे उतना ही बेहतर होगा। तो इस वजह से आपके जितने दोस्त हैं, जितने आपके जो साथ आपके CSS कर रहे हैं, सबके साथ शेयर करते रहा करो, सबसे नॉलेज शेयर करते रहा करो, और सारे मिल के तैयारी करो, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। तो जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जितने आपके माइंड्स इकट्ठे होंगे, इंशाल्लाह उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। दुआएं इकट्ठे करो, और एंड बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल माय प्रेयर्स टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स, and I hope you all succeed. And thank you, Abbas, for conducting Thank you this so interview. much. Once again, thank you so much. God bless you, Abed. Thank you so much. अच्छा, आप लोगों के लिए this session was specially conducted because as per the demands of the aspirants, क्योंकि जो भी हम step उठाते हैं, it is जो आप लोगों की अपनी motivation होती है, जो आप लोगों की अपनी requirement होती है, आप लोगों की अपनी expectations, मतलब as per the जो inquiries आती हैं, तो उनकी वजह से, तो अभी भी जिन्होंने थोड़ी सी और डिटेल्स हैं, you can visit our website, क्योंकि it's just in this limited time, 10 to 15 minutes, we can't explain each and everything obviously. You can visit our campuses are open, you can visit our websites, you can see all about LMS, सारी जो वीडियोस हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, और whatever detail you want to know. कुछ अर्सा पहले भी एक स्पेशली सेमिनार रखा था, ये दोबारा रखने का पर्पस था just because candidates wanted to know something more. So you have to go through our website for whatever guidance you want to make. और अगर कोई चीज क्लियर नहीं है, feel free to visit any of our campuses. ठीक है? Once again, I would like to wish you people best of luck. जो लोग अभी इस बार appear हो रही हैं back in just in 2 months 2021 में, I wish you best of luck. I hope जो अवैध ने आपको tips दिए हैं, take it seriously. और आपको भी पता है, the person who has already scored first position in CSS exam in his very first attempt. So coming from his mouth, obviously, these things work obviously. ठीक है? तो good luck to you all. अल्लाह आपके हक में भी बेहतरी करे, और जो those who are aspiring for the 2022 exam next year, जिन्होंने next to next year जिन्होंने obviously paper में, so start working on that. Inshallah, we will be available for any sort of guidance. आपको LMS की ऐप का एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा, and you can access, मतलब unlimited times you can see number of lectures. वो ये नहीं कि एक दफा आपने लेक्चर हुआ है, जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल में होता है कि आप लेक्चर मिस हो गया तो आपका गया अनफॉर्चुनेट लेक्चर. यू कैन सी द लेक्चर मल्टीपल टाइम, जितनी मर्जी आप. तो 3 months के लिए आपके पास वो ऐप होगी फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, एंड वी विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑप्शनल्स एज वेल, बोथ. लेकिन हमारा साथ एंड तक रहेगा टिल द लास्ट मिनट ऑफ द एग्जाम. February 2022 तक यू कैन एक्सेस एनी ऑफ आवर फैसिलिटी, यू कैन कैश ऑन एनी ऑफ आवर
फैसिलिटी, जो आप हमारी पब्लिकेशंस हैं, जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, मतलब लाइक वी गिव 100+ लेक्चर्स ऑन करंट अफेयर्स, वी गिव एक्स्ट्रा मटेरियल, वी गिव प्रिपेयर्ड एसेज इन द एंड. अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है they need some essays. Okay, those will also be provided. I promise you, inshallah, everything will be provided to you people. Wish you best of luck. Allah Ta'ala दुनिया आखिरत की आसानियां अता फरमाए, और may Allah bless you people for whatever you desire for. जो चीज दिल से चाहो उसी चीज को अल्लाह आपके हक में बेहतर करके पेश करे. Good luck candidates, and we will be here for any sort of help. Feel free to come for any sort of guidance. ठीक है? Again, goodbye.